फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. I'm here with the end of the first innings, the first ODI between India and Australia. Well, it was a classic performance by Mohammed Shami. What Chetan Narula has to say about Shami's performance as Australia were bundled out for 276. Let's hear out from Chetan. Chetan, everyone was thinking of 300 plus scores somewhere or the other, but here Australia managed to put on 276. What are your thoughts on that? It's a below par score. I think आज की डेट में आपके पास 300 होना ही चाहिए जिस टाइप की पिच है. अब Shami was able to get a little more out of the pitch for whatever reason. There were some deliveries that moved a bit initially. Smith की जो delivery थी वो काफी बढ़िया थी. So yeah, I mean he's been able to get something out of the pitch. It remains to be seen, will the Australian pacers get the same purchase out of the pitch, especially under lights. But even in that sense, 276 आज की डेट में on such tracks, it's an under par score. Australia lost a lot of wickets. I believe Chetan, Australian top orders. I'm saying Chetan that whenever we will see this match, the highlights of this match, we'll get to see that how Australian top order batters did get a start, but then they were not able to build on that start. For example, if we see David Warner, he was out after making some 52 odd runs, and then if we talk about Steve Smith, the way he was out, he managed to put just 41 runs on board from his side, and then Josh English as well. I believe he made just 45 runs. So they did get some start, but they didn't build on that start. Yes, I think all of them got starts. I mean, आप देख लीजिए, Warner got a start. I think Smith also got a start. Yeah. It's थोड़ा weird था. I thought maybe the heat was getting the better of them. I think because obviously Australians are not used to such hot conditions, and they're coming from South Africa, which was actually cooler. So I thought maybe the heat was getting to them. They were batting with a lot of confidence initially. जिस तरीके से उन्होंने अश्विन को अटैक किया और वार्नर के चक्कर में जडेजा को काफी देर तक हम लोग बॉलिंग नहीं करा पाए. But again, the fact of the matter is कि जरा सा भी concentration टूटता था तो विकेट गिर जाता था. That was the problem for Australia today. And the regular fall of wickets did not allow. अब they were 257 for 9. उसके बाद से 20 रन तो पैट कमिंस नहीं जोड़ दिए लास्ट के 2 ओवर में. So it was an under par performance from Australia in terms of batting today. It just remains to be seen कि वो bowling में क्या कर पाते हैं. I just feel कि जितना hot और humid था, hot तो होता ही है, but हमने देखा भी था बीच में एक thunderstorm आ रहा था. Yeah. तो उसकी वजह से शायद humidity भी आज बहुत ज़्यादा high थी मोहाली में. And North India में we have been feeling this for a while now. Afternoons are hot and humid. So I think that was really high. I think that was really hurting the Australians. And that's why I feel that India should have batted first. Because keeping the Australian fielders out, that would have been a strategy. But okay, never mind that. But Australia lost a lot of wickets today. Absolutely. And as I was talking about the good performances, the good starts, David Warner got a good start. Josh Inglis got a good start. But then talking about Steve Smith, he didn't manage to convert it into a 50. Chaitanya, what's your thought on Australia's batting? And I would also like you to talk about Mohammed Shami's bowling as well, because a 5 to his name in this match. सर आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से शमी ने गेंदबाजी करी है और विकेटें ली हैं, ये बहुत अच्छी. मतलब एक्चुअली आई एम सेइंग कि इस बेस्ट बात ये हो रही है इस बार की इंडिया के लिए कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है ना वो फॉर्म में है. बुमराह इज इन गुड फॉर्म, यू कैन सी ही इज फ्रेश. सो उसका जो आउटस्विंग है बहुत लीथल दिखाई दे रहा है. उसके बाद अगर आप देखें तो सिराज इज ऑलवेज वेरी एग्रेसिव बॉलर. और लास्ट 1 साल से जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, जितनी एग्रेसिवनेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है,
ही नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और उस तरीके से गेंदबाजी करके उन्होंने मोहम्मद शमी, जो कि आप देख सकते हैं कितने टैलेंटेड बॉलर हैं, और उनको उन्होंने बाहर बिठाने के लिए मजबूर किया इंडियन मैनेजमेंट को, एंड ही परफॉर्म। और आप देखिए मजे की बात, अब शमी वापस आते हैं और शमी 5 विकेट ले लेते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, वो भी मोहाली के अंदर, जो कि बैटिंग पैराडाइज माना जाता है। बट ये अब वो वाला मोहाली नहीं रहा है, ये मोहाली स्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे काफी कम मैचेस होने लगे हैं पहले से। विकेट इज लुकिंग टू पेस हियर, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा द वे ही बोल्ड, ही इज वेरी गुड बॉलर। शमी को आपने देखा जब वो ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, जब आपने टेस्ट मैच में देखा था जिस विकेट पे कुछ नहीं होता था, शमी यूज टू गेट विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो स्विंग करते हैं, he knows how to move the ball very good, best way. So I think Shami is one of the best bowlers right now in Indian contention वर्ल्ड कप में है। तो हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत ही फॉर्म है, और आई थिंक बेस्ट 2 या 3 फास्ट बॉलिंग यूनिट्स में से आएगी अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं। Also, we saw how Bumrah was bowling in Asia Cup. We also saw how Siraj bowled, especially in that match against Sri Lanka in Asia Cup finals. Phenomenal performance by him. And here today, once again, we saw how Mohammed Shami performed. Now, there was a question in front of us where Jason was saying that will pitch be a little better under lights? Chaitanya, I want to know from you. क्या रहेगा पिच का हाल अब जब भारतीय बैटिंग करने आएगी? हाँ जी, सौरभ, नॉर्मली ये विकेट ना शाम को थोड़ा बेटर खेलती है, बैट पे बॉल अच्छा आने लगता है, बट देखिए 4 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, और पंजाब भी इतनी ज्यादा क्रिकेट इस विकेट पे इतने ज्यादा खेलता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखना होगा विकेट कैसे खेलेगी। बट यस, आपको ये भी याद रखना होगा कि लाइट में बॉल मूव भी करता है, ऐसे नहीं है कि लाइट में बॉल मूव नहीं करता, और यहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी हम गर्मी में, अगर ड्यू आता है तो ऑब्वियसली इट्स गोना बेनिफिट इंडिया, बट अगर ड्यू नहीं आता और ये डबल पेस विकेट रहता है, थोड़ा सा बेटर भी होता है। अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स नहीं है, और बट बुरी बात ये है कि मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और स्टोनिस वो बहुत तेज गेंदबाज भी नहीं है, सो दे हैव दैट मिक्स। बट इंडिया के लिए भी ये परेशानी रहेगी कि देखिए शार्दुल ठाकुर को मैंने बोला, एक्चुअल रियल टेस्ट जो होना था ना वो इस टीम के अगेंस्ट होना है, शार्दुल लुकिंग ऑफ कलर, तो हमें हार्दिक को देखना होगा कि हार्दिक कैसा करते हैं। और मुझे लगता है जैसे आप शमी ने 5 विकेट ली, सोचिए कुलदीप यादव खेलते, अगर वो भी 2-3 विकेट ले लेते, जब अश्विन ने 1 विकेट लिया है, तो अगर वो भी 2-3 विकेट लेते तो उनका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होता, और विकेट डबल पेस थी, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कुलदीप को क्यों रेस्ट दिया। और आई थिंक ये विकेट बहुत बेहतर तो नहीं होगा, यस रन कम है तो इतना प्रेशर भी नहीं होगा, बट इंडियन बैटिंग के अंदर भी आप देखें तो केएल राहुल, शुभमन गिल और ईशान किशन, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अपने ऊपर लेके चलना होगा मैच में। अगर शुभमन जल्दी आउट हो जाते हैं, ग्राउंड है, केएल राहुल जल्दी आउट हो जाते हैं, तो ये 275 जो है ना, ये 290 दिखाई देगा फिर से। बिल्कुल। और चैतन्य, वही हम बात कर रहे थे कि शुभमन गिल का तो ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस उनसे तो आनी ही चाहिए। वेल, क्वाइट अ लॉट ऑफ फैंस आउट देयर आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट परफॉर्मेंस आउट ऑफ शुभमन गिल। बट Chetan, before the start of this series, there was this one name that everybody was talking about, and just before this match as well, and it was none other than Ravichandran Ashwin. Ashwin got his chance in his playing 11. He also got a wicket today. What do you have to say about Ashwin? Did you find कि लग रहा था थोड़ा सा कि इतने समय बाद वो बॉलिंग कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ से देखने को तो नहीं लग रहा था और फैंस को भी नहीं लग रहा था कि अश्विन बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं ओडीआई में, बट व्हाट आर योर थॉट्स? I mean, लग रहा नहीं रहा था तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि लग नहीं रहा था कि ही वाज बॉलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक इट वाज एक्चुअली वेरी विजिबल, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट अपना स्पेल, उसमें काफी अच्छे से ही वाज गिविंग एट 6.5 पर ओवर, क्योंकि जो आपके सामने 2 सेट बैट्समैन थे एंड ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट, जैसे डेविड वार्नर को ही वाज नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ फ्लाइट, ही वाज बॉलिंग क्विकर, ही वाज बॉलिंग फ्लैटर। लेफ्ट हैंडर को फ्लैटर और क्विकर बॉल कर रहे थे, और स्टीव स्मिथ जो राइट हैंडर हैं उनको हल्का सा फ्लाइट दे रहे थे, एंड बोथ ऑफ देम हिट बिग सिक्सेस ऑफ हिम। सो I think he was leaking runs in the beginning. What helped him today was, and I definitely think he was looking a little off color. The fact that he has not played white ball cricket for a while, इस level पे वो दिख रहा था. Maybe he's played white ball cricket locally, TNPL, वहाँ पे pitches कैसी होती हैं, different होती हैं. I was coming to that point only. I was about to come to that point. Yeah. It was a flatter wicket, और आपको international cricket में ऐसी flatter, चाहे थोड़ी सी वो होंगी, डबल पेस्ड होंगी, लेकिन
he was struggling in his first spell. What helped him? He विकेटें गिर रही regular intervals पे, so he was able to attack. एक उनको देख के एक चीज लग रही थी, and it was funny because he was bowling from the Harbhajan Singh end. Harbhajan Singh जब उनका last phase आया था ना career का, especially in ODIs and थोड़ा उन्होंने T20 खेला, तो वो चोर bowling करते थे. ये चोर बॉलिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था. चोर बॉलिंग क्या होता है कि आप रन नहीं दे रहे हो, लेकिन रन ना देने के चक्कर में आप विकेट भी नहीं खोज रहे हो. यू आर ट्राइंग टू गिव अवे एज फ्यू रन्स एज पॉसिबल. अब आई डोंट थिंक अश्विन वर्क्स विद दैट माइंडसेट कि उनको विकेट नहीं लेनी है, लेकिन आज जब मैं उनकी बॉलिंग देख रहा था तो मुझे वो चोर बॉलिंग का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था. चैतन्य से पूछ रहे थे क्विकली यहाँ पे एक क्विक टेक ले लेते चैतन्य से. चैतन्य, आपको नजर आ रही थी वो चोर बॉलिंग? बिल्कुल, आज उन्होंने एक्शन ही चेंज किया हुआ था अपना स्वरम में, और वो दिख रहा था उनके कहीं ना कहीं उनके जहन पे ये बात है कि अगर वो इस मैच में अच्छा बॉल डालेंगे या आने वाले अगले मैच में अच्छा बॉल डालेंगे तो शायद वो वर्ल्ड कप की टीम में चले जाए. तो इतना बड़ा प्लेयर अगर ऐसे सोचे कि मेरा चयन इन 2 मैचों से होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके थॉट में दिखता है, और वही आज हमने उनके एक्शन में देखा. He was just trying to come and take a हल्की सी ब्रेक 1 सेकंड का, और देखना चाह रहे थे बैट्समैन क्या करेंगे. वो देखने को मिला था. हाँ, अगर आप अश्विन को देखें तो वनडे में वो बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेते हैं, और उनकी इकोनॉमी वो 5 के आसपास रहती है पिछले 10-12 वनडे से. बट स्टिल आई थिंक इंडिया को ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे इस वर्ल्ड कप को अगर आपको जीतना है जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल के दे. अगर विकेट नहीं मिली मिडिल ओवर्स में, मतलब देखिए आज हम लकी रहे कि शमी 5 ले गए, बट हर बार हम लकी नहीं रहेंगे कि फास्ट बॉलिंग हमारी बैटरी जो है वो हमें 7-8 विकेट दिलाए. आई थिंक 3-4 विकेट भी अगर फास्ट बॉलिंग ले लेगी इन विकेटों के ऊपर, और 3-4 विकेट हमारे स्पिनर ले लेंगे, तो फिर आखिरी का सफर बड़ा आसान रहेगा. अदरवाइज तो चेतन, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन कि आपके पास जो अश्विन है, अभी आप बात कर रहे थे कि अश्विन है, आपको विकेटें नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या अश्विन को सोच सकते हैं वर्ल्ड कप में, या हम नहीं सोच सकते हैं? क्या हमें वाशिंगटन सुंदर को ट्राई करना चाहिए? He cannot be your first choice spinner. तो आपके कुलदीप यादव and Jadeja have to play. And आप ये चीज देखिए, Jadeja probably bowled a lot better than he bowled in the Asia Cup. क्योंकि एक टाइम पे जब वो उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, मेरे ख्याल से 2 विकेटें गिरी, तो वहां पे आई थिंक ही इज बोल्ड अ लॉट बेटर ऑन अ पिच व्हिच वाज एक्चुअली बेटर फॉर बैट्समैन. श्रीलंका में जो पिचेस थी दे वर बेटर फॉर स्पिनर्स, एंड फॉर सम रीजन ही वाज नॉट इन रिदम और व्हाटएवर. शायद उनको जो गैप मिला है वो उनका रिदम उसने उनके रिदम को तोड़ दिया है. वेस्ट इंडीज के बाद, वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने इतना ज्यादा नहीं खेला. But Jadeja actually surprised me that he bowled a lot better today. Actually, चेतन मतलब जडेजा को ना ऐसी विकेट ज्यादा सूट करती है जहाँ पे ना बॉल बैट पे आता है. Yes, but that's the reason he was looking better today. Yeah, but again it's a little surprising because अक्षर के साथ उल्टा है. अक्षर को जहाँ पे अक्षर को हल्का सा टर्न मिल जाएगा, वहाँ पे he is going to bowl a lot better. So they are similar bowlers but very different in the way they bowl. So my point is कि जडेजा का फॉर्म was a little up and down अभी तक. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं, but I think he bowled a lot better today. The problem is the only 2 wickets that they got. जी हाँ, आपके शमी ने 5 विकेट निकाल लिए, लेकिन यही स्टार्ट में भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विकेट मिले थे. ये विकेट बीच में आए. जब भी शमी ने बॉलिंग की है, आके उन्होंने विकेट उठाए. तो या तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके विकेट टेकर्स आपके पेसर्स होने वाले हैं. आई विल नॉट बी वेरी हार्श ऑन शार्दुल. आई थिंक ये गर्मी उनकी फिटनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई थी. You saw that visual जहाँ पे वो अपने knees को पकड़कर बैठे थे, and you know that exactly. visual. It was like okay, something. I think I'll not be very harsh. ये बीच में एक कमेंट आया था कि 3 स्पिनर खिलाने चाहिए. I don't think so. I absolutely don't think so कि आप 3 स्पिनर ऐसी पिच पे खेल सकते हो. नहीं खेल सकते. तो I'm not sure. इससे थोड़ी सी ज्यादा स्लो होनी पड़ेगी पिच to play 3 spinners. Because Jadeja and Ashwin, ठीक है, they have made a good start. चैतन्य की बात बहुत जबरदस्त है कि Ashwin was bowling, तो हमें मतलब ऐसे दिख रहा था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, which was actually very true. जो मैंने चोर बॉलिंग कही है, वो विकेट रन नहीं दे रहे थे. ये जो फिगर्स है ना, these figures will get him into the World Cup squad. क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट मन बनाकर बैठा हुआ है कि हमको अश्विन को लेके जाना है वर्ल्ड कप. My personal opinion is still this कि Ashwin Jadeja do not work together.
in ODI cricket. It just does not work. आज आपके पास शमी थे जो रेगुलर विकेट निकाल के गए, it worked. जडेजा, अश्विन, ये हम 2017 में छोड़ चुके हैं. I don't see how this works anymore, very honestly. So, Chetan, what could be the reason that Ashwin's name was not included in the squad at first? Were they waiting for this series? Were they waiting to see how Ashwin will bowl in this series? What could be a possible reason? I can't I can't tell all the reasons. बस मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो इससे पहले जो सिलेक्शन पैनल था, they did not have a chief of selectors. अगर अगर आप एकदम से IPL के एंड में आ गए होते तो शायद वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसी में ही आप थोड़ी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखते. मैं टीम एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ. टीम एक्सपेरिमेंटेशन हमने काफी देखी है वेस्ट इंडीज. उसके बाद जब अगरकर आए तब वो बैठे, वो वेस्ट इंडीज गए, माइंडसेट वहां पे उन्होंने देखा क्या है, लेकिन तब तक एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने का टाइम आ गया. So they went with the three spinners they had. But even before the Asia Cup was, Asia Cup began, ये चीज सुनने में आ गई थी. I think Srini has also told you this. I'll also tell you this again, and Sahil has also told you this. ये चीज आ गई थी सामने कि somewhere the team management, especially the captain, had started thinking about an off spinner. अब वो वॉशी होते या अश्विन होते, but I think the discussion, and I will not say who is in favor of Ashwin, but somebody there is really in favor of Ashwin. And I think because आपने श्रीलंका में जाके देखा कि आपके 3 स्पिनर सेम वैरायटी के हो रहे हैं, सेम एंगल से आ रहे हैं, खासकर कि अश्विन और खासकर कि अक्षर और जडेजा सेम एंगल से आ रहे हैं, और वो मिसफायर कर सकता है. अब आज देखिए ना, आपके पास कुलदीप होते, अक्षर होते और जडेजा होते, तो आप क्या वार्नर के आउट होने की वेट करते रहते स्पिनर के लाने से पहले? ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत बेकार माइंडसेट है. वैसे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन वाला, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वाला, ये मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार माइंडसेट है. आई थिंक इट ओनली वर्क्स इन T20 क्रिकेट बट नॉट इन ODI क्रिकेट. You can't, in longer formats, you can't go by this logic. Okay. But yeah, so I think an off spinner is important. I still don't think it should be Ashwin, but ठीक है. Okay, Chaitanya, what do you think? Now, Chetan clearly mentioned that these figures will take Ashwin to the World Cup squad, and Ashwin will find his position out there. But do you think that Jadeja, Ashwin in the same playing 11 will work out for Team India in Indian conditions in ODI World Cup? पहली बात तो सौरभ में आपके और मेरे और चेतन के सोचने से कुछ नहीं होने वाला. जो हो चुका है वो होके रहेगा. बात यह है कि फिजिबल क्या होने वाला है. फिजिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक वो भी हैरान है. देखिए, जो बैट्समैन देख रहा है वो भी देख रहा है अश्विन आया क्या, ये कैसे आ गया, ये तो वॉशिंगटन आना चाहिए था पहले. इन्हें अश्विन कहाँ से ले आए, वो भी सरप्राइज है. एक्चुअली देखिए, वॉशिंगटन सुंदर को आप लेके आते हैं श्रीलंका में एज ए रिप्लेसमेंट. वहां पे वो बॉलिंग एक ओवर कर पाता है, उसके बाद यहाँ पे बेचारे को कुछ नहीं मिलता, अब वो बाहर बैठते हैं. बड़ा स्ट्रेंज है. मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. तो मतलब इसके बाद बहुत बड़ी डिस्कशन हुई होगी कि अश्विन या वॉशिंगटन, क्योंकि अगर आप वॉशिंगटन और अश्विन को टीम में लाए थे तो पहले वॉशिंगटन का खेलना बनता था, क्योंकि आपने उनको श्रीलंका में लेके गए थे एशिया कप फाइनल के अंदर. तो चलिए, अब आपकी बॉडी डिस्कशन है, आप अश्विन को ले आए. बट बात यह है, क्या उनका ये मानना कि एक सीनियर खिलाड़ी को टीम में रखना या कोई भी उनके फेवर में है, वो इंडिया के लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा? इस तरह की गेंदबाजी से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा. बिकॉज अगर जडेजा और अश्विन दोनों खेलते हैं तो रीजन ये है कि दोनों जो हैं मतलब एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, रन रोकने में रन लीक नहीं करेंगे इजीली, बट विकेट भी नहीं लेंगे बहुत जल्दी. सो बेसिकली जैसे मतलब मैं भी जब गेंदबाजी करता था वनडे के अंदर, तो मेरा एम ये होता था कि आई कीप इट टाइट एंड अदर प्लेयर्स स्टार्ट डूइंग अराउंड मी. ये मेरा रोल रहता था. तो ऐसे में जब ये वाले गेंदबाज है, ये भी यही रोल प्ले करते हैं, जडेजा भी यही रोल प्ले करते हैं, अश्विन भी यही रोल प्ले करते हैं. तो आप कभी भी लकी नहीं होंगे कि वो बार बार फास्ट बॉलर आएगा और विकेट लेके चला जाएगा. तो आपको विकेट टेकर रखना होगा एक टीम के अंदर कि विकेट टेकर अगर होगा, क्योंकि ये 50 ओवर की क्रिकेट है. इसमें अगर एक पार्टनरशिप लग गई, सोचिए जिस तरह कैमरन ग्रीन या स्टॉनिस ने शुरू किया था
अगर वो कंटिन्यू करते तो 275 नहीं होता, ये 300 रन पे पहुंच जाते। And for that matter, Steve Smith and David Warner as well. एक टाइम पे बहुत अच्छे लग रहे थे because Steve Smith was in his 30s and Warner was in his 40s. So it seemed कि अगर ये partnership build होगी तो काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम. So I think point taken there, very valid point कि आपको एक wicket taker चाहिए. लेकिन quickly here because Indian batters are all set. Chetan, क्या approach रहनी चाहिए Indian batters की, especially when you have these youngsters, you have Ruturaj Gaikwad over there and you have someone like Surya Kumar Yadav also in that playing 11, and all these batters will be seen out there if it goes to Surya Kumar Yadav, so to say. So what should be the approach? No, I think they have to play the batting lineup that they picked. जिस ऑर्डर में उन्होंने पिक किया है उसी में ही खिलाना है. राहुल द्रविड़ ने कल कहा था कि हमको अपने वर्ल्ड कप बैट्समैन को उसी रोल में प्रैक्टिस देनी है. सो द लास्ट थिंग आई वांट देम टू डू इज, एंड आई विल रियली हिट माय हेड ऑन द वॉल, कि अगर वो उस बैटिंग लाइनअप को पिक करते हैं और फिर वो बैटिंग लाइनअप को उस बैटिंग लाइनअप में नहीं देते हैं, उस बैटिंग ऑर्डर में नहीं देते हैं, मतलब फिर तो आप अपना सर मार लो ना दीवार पे कि आप कह रहे हो, पिक कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो. So there is no other option. ऋतुराज और शुभमन को ओपन करना है. यही लाइनअप जो उन्होंने दिया है, यही लाइनअप should play because it defines roles for them in the World Cup. ईशान जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि रोहित एंड शुभमन are your first choice. Unless something goes drastically wrong, Ishan is not going to open in the World Cup. और या तो किसी दिन कोई पेच गिर जाए सर से, तब उस दिन शायद ओपन कर लेंगे, लेकिन otherwise it's not going to happen. So let's go with that. बाकी 276 जैसा हमने कहा कि it's going to be under par if India bats well, but ऐसा नहीं है कि 276 हमेशा ही चेज हो जाता है. It's not like कि ऑस्ट्रेलिया are mugs with the ball. आपको एक प्रॉपर स्टार्ट लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी पड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया 276 क्यों रिस्ट्रिक्ट हुए? क्योंकि आप देखिए 52, 41, 39, 31, 45, 29. Where are 70 plus scores? Where are 80 plus scores? Nobody went and took their start and converted into something big. इंडिया के बैट्समैन भी अगर अपनी स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं करेंगे, it will be a close game. बीच में एक सवाल आया था, क्या स्टॉइनिस और ज़ैम्पा को परचेज मिल सकता है? मिल सकता है. I am not able to read today's pitch as good as Chaitanya maybe. मिल सकता है. I have always said Zampa could be a threat. बाकी let's see how the innings progresses. Well, Chaitanya से ही पूछ लेते हैं. Chaitanya, according to the pitch and according to the conditions that you've been seeing, क्या लगता है Stoinis और Zampa को परचेज मिलेगा? And who is that one batter that you're putting your bet on? See, I think Shubman Gill and KL Rahul have a good chance. ईशान किशन तो consistent है इस वक्त, तो मतलब इन तीनों में चूज करना मुश्किल है, बट इन तीनों का चलना बहुत जरूरी है. इन तीनों में से दो की 50 होनी बहुत जरूरी है, या एक का 100 अगर इस स्कोर को चेस करना है. अगर हम शुभमन को जल्दी आउट होते हुए देखते हैं तो ये स्कोर 275 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 290 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज सूर्य कुमार, अच्छा, आई वांट टू सी सूर्य कुमार यादव बैट. मैं चाहता हूँ उनको देखना कि वो बैटिंग करें, बिकॉज अगर वो अगले 2 मैच में रन नहीं बना पाते तो आई थिंक हमें फिर मूव ऑन करना चाहिए. अभी भी कोई लेट नहीं है. बट Stoinis and Zampa, even Mitchell Marsh, Cameron Green, they all can play a vital role because wicket is 2 pace, and if they can use the wobble seam for fast bowlers, yes, they can make a damage to Indian batting line. एंड चैतन्य, अगर आप सूर्य कुमार यादव को देखेंगे तो मुझे लगता है फिर उनको सोचना चाहिए कि 300 प्लस हमें चेज करने हैं, क्योंकि इफ सूर्य कुमार यादव इज आउट देयर एंड ही इज बैटिंग, ओनली ही एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन ओवर देयर. तो अभी तो लोगों का ये कहना है, आई एम जस्ट सेइंग जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंडियाज बैटिंग व्हाट विल हैपन इन दिस मैच, वी विल गेट टू नो एज द मैच प्रोग्रेसेस. बट यस, एवरीवन's keeping their bet on Shubman Gill, KL Rahul and Ishan Kishan. Kishan is in a really good form, but let's see if we can get good scores from Shubman Gill and KL Rahul. Thank you so much, gentlemen, for joining with me, and thank you so much, everyone, for giving us all your questions. Thank you. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब